Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, students. In the last few lectures, we were discussing on the topic Introduction on Web Technology. What is web technology? We were discussed in the last lecture that web technology, it refers to a tool and technique that is used in the communication between two users or two devices via internet, through internet. इंटरनेट के थ्रू दो डिवाइसेस, दो यूजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक यूज होते हैं उसे कहते हैं हम वेब टेक्नोलॉजी. We will also discuss about the internet, what is internet, about the history of the internet, and that how the world war has took a great role in the era of internet, and we will also discuss about what is web browser, web pages, how number of web pages are connected with each other and create a website, and that website can be accessed by the web browser. That web browser is just an application that we can install in a system or a phone, and we can visit different type of websites, web pages. Okay, and we will also discuss about the of web designing, how we design website. As we all know that for web designing, for web designing is a process in which it is divided into two parts. First is front end and second is back end. Basically, front end is that what a user see on the screen, what user can see on the screen, like whenever he visit on the website, a web page, the attractive the font size and the way of the presentation of the web page are shown for the user, and the way website is being created, the advertisement, and these things are seen by user on the desktop, on the screen. That is called front end. Whatever the screen shows to the user, that is called front end. And the on the back end, whatever the coding and tools, techniques are used to represent that web pages, to represent that website on the background, the things that are used to create that, it is called back end. Okay. After that, we were discussed about the protocols, different type of protocols, that is HTTP and file transfer protocol FTP, and TCP IP transfer control protocol, internet protocol, different kind of protocols we have already discussed in the last lecture. And we all know that protocols is a set of instruction in which we can communicate. By that protocols, we can communicate with different users, different devices. We can connect through a massive number of internet. As we all know that in our world, in our all over globe, number of networking are connected with each other. There is a number of networking, and by that networking, number of users are connected. Okay. So today we will discuss about the introduction on client-server computing. First, we will see what is client in client-server computing. A client is a user that requests for some resources or information with the help of device like laptop, PC, and mobile. Here is the diagram. See, there is a three kind of a device. First is your PC, personal computer. The second is mobile and the laptop. Okay. अब basically क्लाइंट साइड होता क्या है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में. आपका क्लाइंट बेसिकली एज अ यूज़र जो कि रिक्वेस्ट करता है सिस्टम को कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, कुछ रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, जो रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टिंग साइड जो होती है वो होती है क्लाइंट साइड. जैसे कि हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट, हम एज अ एम्प्लॉय और वट एवर, हम लोग अगर सर्च करते हैं कुछ डेटा रिट्रीव करने के लिए, साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक चीज़ें सर्च करते हैं, रिसर्च पेपर सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ताकि हम अपने आगे के प्रोसेस को सर्च कर सकें, आगे के प्रोसेस को बढ़ा सकें. उस सर्चिंग प्रोसेस में जो डेटा रिट्रीवल के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, जो टेक्निक यूज़ होती है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो जो
एज अ यूज़र इंफॉर्मेशन पुट करता है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जो पुट करता है वो होता है आपका क्लाइंट साइड। ठीक है, अब आप एज अ क्लाइंट, आप एज अ पीसी, मोबाइल, लैपटॉप, वट एवर डिवाइस यू लाइक, आप कोई भी डिवाइस के थ्रू आप वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वर साइड। सर्वर इज अ सर्विस प्रोवाइडर दैट सर्व द रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। ओके, सर्वर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, मीन्स ये सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। जो भी रिक्वेस्ट आपकी क्लाइंट करती है कि हमें ये इस डेटा की जानकारी चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉय की आईडी के थ्रू उनके बारे में जानना है, क्या सैलरी डिस्कशन हुआ, क्या हुआ, तो जो भी एज अ यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो वो सर्विस प्रोवाइड कराता है उस क्लाइंट को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्वर है और ये आपके दो सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक सर्वर को, पर्टिकुलर सर्वर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैन हैंडल। ठीक है, आप कोई बट डिफरेंस सर्वर एंड क्लाइंट में यही है कि क्लाइंट जो है सिर्फ एक ही सर्वर को एट अ टाइम रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, और सर्वर जो है मल्टीपल क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। और सर्वर जो है आप क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है वो सर्विस लेने के लिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर विच वर्क एज अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसा कि आपने देखा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्लाइंट और सर्वर की जो वर्किंग होती है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है एक दूसरे से सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को और सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, और ये सारा प्रोसीजर थ्रू इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर आपका इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ये जो पूरी प्रोसेसिंग है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की, इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ओके, एज वी ऑल नो दैट इंटरनेट आपका ऑल ओवर यूज हर जगह पे आता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। एज अ यूज़र, एज अ क्लाइंट, आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हो सर्वर में, सर्वर के पास जो भी डेटा रहता है एक तरफ से उनके पास स्टोर रहता है, और जब भी आप किसी के बारे में सर्च करते हैं, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी, अगर आपने वेब टेक्नोलॉजी कुछ सर्च की गूगल पे, तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो लाइन बाय लाइन आपको शो करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में जो भी डेटा रहता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो वो सर्वर प्रोवाइड कराता है यूज़र को एज पर उनके रिक्वायरमेंट के थ्रू इंटरनेट, वाया इंटरनेट के थ्रू आप क्लाइंट को आपकी रिक्वेस्ट प्रोवाइड कराता है। अब क्लाइंट सर्वर के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस जैसे मैंने बताया कि एट अ टाइम नंबर ऑफ यूजर्स उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं इंटरनेट के थ्रू, आप किसी भी लोकेशन में, कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, कहीं भी, क्योंकि आपकी ऑल ओवर नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा फैली रहती है, तो किसी भी एरिया में कहीं पे भी आप अपना रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो एडवांटेज है ये कि अगर आपका सर्वर और आपका क्लाइंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं, अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्वर क्रिएटेड है और क्लाइंट है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे कि डिफरेंट ओएस के आपका क्लाइंट जो है डिफरेंट ओएस यूज़ कर रहा है, आपका सर्वर डिफरेंट ओएस हैंडल कर रहा है, तो भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस। आपके डिसएडवांटेजेस जो हैं, डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी जब आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स ने मतलब रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, जब हम फॉर्म फिलिंग करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि इस डेट से स्टार्टिंग डेट ये है, एंड डेट ये है, तो मोस्टली लोग लास्ट डेट पे करते हैं। जब भी अगर
अपना फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपका सर्वर डाउन हो जाता है। और सर्वर डाउन क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स उस वेबसाइट को ओपन करने का ट्राई करते हैं ना, उस वेबसाइट पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, उस सर्वर पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि कहीं कहीं यूजर्स को एरर शो करता है। और ये एरर इसीलिए शो करता है क्योंकि वो सर्वर पे ओवरलोडिंग हो जाती है, ओवर क्राउडिंग, इसे कहते हैं ओवर क्राउडिंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो आपका जो ओवरलोडिंग ओवर क्राउडिंग होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को, जो आपके क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस है, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क भी एज अ रेफर करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू, ऑल ओवर नेटवर्किंग के थ्रू फैला हुआ है। ठीक है, तो जो आपका ये जो प्रोसेस है कि फेल हो जा रहा है, ये हो रहा है, ये आपका एज अ फेलियर ऑफ नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि इसके ड्रॉबैक एक ये भी हैं, डिसएडवांटेज ये भी हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, आपकी सर्वर को मेंटेन करने की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्वाइट हाई है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी वैल्यू चाहिए होती है। ओके, और इसके जो एडवांटेजेस, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं कि हम लोग की रिक्वेस्ट जो अगर बाई चांस फेल हो जा रही है, सर्वर डाउन हो जा रहा है आपका, तो उसको क्वाइट टाइम टेकिंग हो जाता है उसको रिकवर करने में। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस में आपका सर्वर डाउन होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से आपके इंटरनेट पे, आपके नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आप समझ गए हैं कि ये एक तरह का कम्युनिकेशन है बिटवीन क्लाइंट और सर्वर, जिसमें कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की पूरी प्रोसेस होती है थ्रू इंटरनेट। ओके, थैंक यू।